गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंड्यूस्ड म्यूटेशंस एंड फिजिकल म्यूटेशंस, जिसमें हमने रेडिएशंस के बारे में बात किया था। हाउ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक द यूवी रेडिएशन और द आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड मैनी अदर कॉस्मिक रेज, हाउ दे आर being used as a mutagen, especially the gamma rays, that is frequently used for the mutagenic studies. Okay, now in this lecture we are going to discuss the chemical mutagens. Chemical mutagens are broadly divided into three parts: base modifying agents, जो nitrogenous bases जो DNA में present होते हैं उनको modify करेंगे। बेस एनालॉग्स, जो उन नाइट्रोजनस बेसिस के जैसे होते हैं, इसलिए वो गलती से कई बार नाइट्रोजनस बेसिस की जगह ये दूसरे केमिकल्स उसमें इंसर्ट हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और थर्ड कैटेगरी आती है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, जो कि बेस पेयर्स के बीच में फंस जाते हैं, इंटरकैलेट हो जाते हैं, सैंडविच हो जाते हैं और उसकी वजह से डीएनए में एडिशन और डिलीशन होता है। तो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं कि इंड्यूस्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं, ये वो म्यूटेशंस हैं जो डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली इंड्यूस करे जाते हैं बाय मींस ऑफ द फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। ओके, और ये म्यूटाजेंस क्या होते हैं? ये केमिकल एजेंट्स को हम म्यूटाजन का स्टेटस कब देते हैं? जब वो डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करते हों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और उसमें म्यूटेशन करवाते हैं। So what's the big difference between the spontaneous and the induced mutation? We should count the difference in two terms. Firstly, for the spontaneous mutations, we do not know the proper cause. We do not know the proper mutagen. But for the induced, yes, obviously we do have. Another thing, spontaneous mutations may occur naturally, and that's why the basic rate of mutation is very low in comparison to induced mutations. So the induced mutations set at higher frequency, while the spontaneous mutations have very low frequency comparatively. That's why induced mutations are very useful tool in the genetic studies. What kind of genetic studies? For example, Mueller performed his mutagenesis study on Drosophila, okay, by making knockout function of many genes, and that's how he or the other scientist could be able to correlate the function of a gene. Okay, so such kind of mutation and gene function correlation, if established for a biological process, for example glycolysis, for example TCA, in which multiple enzymes and that's why multiple genes are involved in that one, such approach is considered as mutational dissection of a biological process. So induced mutation is a very powerful tool to study such kind of biological processes, especially their genetics. Okay, now we are going to discuss the chemical mutagens. What happens during the World War II? There was a scientist, Auerbach. She firstly told that mustard gas can have the mutagenic potential. So technically it is the mustard gas which is the first chemical mutagen discovered. Okay, now these chemical mutagens, they may found naturally, they may be synthetic substances. All these mutations are put into two broad groups depending on the mechanism of action. But whatever the action would happen on the DNA. And we know very well, DNA may present in the cell either in the replicating form or in the non-replicating form. Okay. So all those mutagens are put into one category that are mutagenic to both replicating and non-replicating DNA. That means if such kind of mutagens are given or are given as a treatment to DNA at any point of cell cycle,
दे मे क्रिएट द म्यूटेशन। ओके, इसका जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है दैट इज बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स, दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल। तो हमने एक कैटेगरी इसमें जो बात करी वो ये है कि वो म्यूटेशंस चाहे वो डीएनए रेप्लिकेटिंग स्टेट में हो चाहे नॉन रेप्लिकेटिंग स्टेज में हो, उन दोनों ही केसेस में वो म्यूटेशंस करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, जैसे कि बेस मॉडिफाइंग जो एजेंट्स होते हैं वो, उन सबको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी कैटेगरी में सिर्फ वो म्यूटेशंस हम रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए पर ही अपना इफेक्ट शो कर पाते हैं। ऐसे म्यूटेशंस बेसिकली बेस एनालॉग्स होते हैं और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के जो म्यूटेशंस है उनको डीएनए में तब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा जब रेप्लिकेशन हो रहा हो, तभी वो म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, अदरवाइज वो म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स। जैसा नाम से आप वाकिफ हो रहे हैं आसानी से कि ये नाइट्रोजनस बेसिस को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके काम करने के तरीके के आधार पे हम इनको 3 टाइप की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। ओके, जैसे पहली कैटेगरी ए डी एमिनेटिंग एजेंट्स। HNO2 जो होता है नाइट्रस एसिड, ये डी एमिनेटिंग एजेंट है और ये क्या करता है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ग्वेनिन से ये ज़ैंथीन बना देता है, साइटोसिन से यूरासिल और एडेनिन से हाइपोजेंथिन। और आप मजे की बात देखिए, एडेनिन यूजुअली किसके साथ पेयर करना चाहिए, थाइमीन के साथ। लेकिन जब ये हाइपोजेंथिन में तब्दील करवा दिया जाता है तब ये थाइमीन की जगह किसके साथ पेयर करना शुरू कर देता है, ऑल्टरनेटिंग पायरिमिडीन, दैट इज साइटोसिन। सिमिलरली साइटोसिन यूजुअली ग्वेनिन के साथ पेयर करता है, लेकिन नाइट्रस एसिड के इन्फ्लुएंस में ये यूरासिल में तब्दील होकर अब एडेनिन से पेयर करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AT to GC ट्रांजिशन और GC to AT ट्रांजिशन, दोनों टाइप के ट्रांजिशन ये हमें करवा देता है। इसी तरीके से हाँ, एक और पॉइंट जो इसमें रह गया, ग्वेनिन से ज़ैंथीन तो बना देता है लेकिन ज़ैंथीन म्यूटाजेनिक नहीं है, क्योंकि ग्वेनिन की तरह ही ज़ैंथीन भी किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन की तरह पेयर करता है। सो देयर वुड बी नो ट्रांजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन फ्रेंड्स? Transitions means purine is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine. So here you can consider cytosine is going to convert into uracil. Okay. Now what happens when it is in the replication situation? Usually this uracil would base pair with the adenine instead of guanine. So guanine की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया। इसका मतलब प्यूरिन को किसने रिप्लेस किया, प्यूरिन ने रिप्लेस किया। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एडेनिन को किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट करवा दिया। एडेनिन किससे पेयर करता है, ग्वेनिन थाइमीन से पेयर करता है, सॉरी। और हाइपोजेंथिन किससे पेयर करेगा, थाइमीन से ना करके किससे पेयर करेगा, साइटोसिन से। तो थाइमीन की जगह साइटोसिन आना, इसका मतलब पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन का आना। तो इसलिए हम इस कैटेगरी को किस में रखते हैं, ट्रांजिशन के कैटेगरी। दूसरे टाइप के जो बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स। ये जो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स है NH2OH, ये सिर्फ साइटोसिन पर एक्ट करता है और उसके अमाइनो ग्रुप पे स्पेशली एक्ट करके ये हाइड्रोक्सिल एमीन जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोक्सिल एमाइनोसाइटोसिन। और ये मॉडिफाइड बेस ग्वेनिन से रिएक्ट ना करके किससे रिएक्ट करता है, एडेनिन से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब ये CG2TA ट्रांजिशन को ही कर पाता है, ये AT to GC को नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एक पर ही एक्ट करता है। तीसरा जो कैटेगरी है बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स का वो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स नाम से समझ में आ रहा है, ये अल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे MMS, EMS यानी मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। सो दे आर डोनेटिंग देयर मिथाइल और इथाइल ग्रुप। ओके, यूजुअली दे डोनेट टू ग्वेनिन फॉर एग्जाम्पल।
If they donate the ethyl or methyl group, the keto group is converted into methoxy group or the ethoxy group. That's why the pairing potential is getting changed. Now this modified base, that's modified guanine, would not pair with the cytosine, rather than it would pair with the thymine. That means it also converts GC to AT transition or the vice versa may happen. सो ये बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स है, वन बाय वन हम इनको वापस डिटेल में कंसिडर करते हैं. सबसे पहले डीएमिनेटिंग एजेंट्स. जो डीएमिनेटिंग एजेंट्स हैं जैसे HNO2 है, ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किन किन का करते हैं? एडेनिन, ग्वेनिन और साइटोसिन का. थाइमिन का क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें अमाइनो ग्रुप होता ही नहीं है. तो काम क्या है? डीएमिनेटिंग एजेंट्स का काम होता है जो भी अमाइनो ग्रुप रखने वाले नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनके अमाइनो ग्रुप को ये कीटो ग्रुप में चेंज कर देता है और इस तरीके से उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बदल जाता है. यानी जब ये किसी एक फॉर्म में होते हैं, जब ये नॉर्मल फॉर्म में बेसेस रहते हैं, तब वो वॉटसन क्रिक पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंगली पेयर करेंगे. लेकिन डीएमिनेटिंग एजेंट्स के साथ में ट्रीट करने के बाद में अब उनमें वॉटसन क्रिक पेयरिंग रूल काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन और पायरिमिडीन से रिएक्ट करते हैं और इस वजह से AT2GC ट्रांजिशन भी वो करवा सकते हैं और GC2AT ट्रांजिशन भी वो करवा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में अभी कंसिडर किया था. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीएमिनेटिंग एजेंट्स आर वेरी कॉमन सोर्स ऑफ म्यूटेशंस. ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि शायद स्लाइड में आपको देखने को नहीं मिले, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग डीएमिनेशन. Deamination of cytosine is very frequent process here, and that's why it is creating a DNA damage. So it requires most of the attention of the DNA repair procedures. Okay. Next is hydroxylating agents. अगर हम डीएमिनेटिंग एजेंट के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि AT2GC और GC2AT ये दोनों ही ट्रांजिशन करवाता है, लेकिन हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ GC2AT ट्रांजिशन ही करवाते हैं. इसका मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो करते हैं. ओके, तो इनका बहुत स्पेसिफिक पर्पस है. दे आर वेरी यूजफुल इन क्लासिफाइंग ट्रांजिशन म्यूटेशंस. यानी म्यूटेशन कोई म्यूटेंट है, ट्रांजिशन म्यूटेंट है, अगर हम उसको हाइड्रोक्सिल एमीन से ट्रीट करके रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिवर्सिबिलिटी हो पाती है कि नहीं हो पाती, उसके बेसिस पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का ट्रांजिशन था, वेदर इट वाज GC2AT और AT2GC. फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर कि अगर AT बेस पेयर्स इंड्यूस नहीं हो पाते हैं, रिवर्ट नहीं हो पाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, ओके, और या तो फिर अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि देखिए आप और हम अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को कि ये सिर्फ GC2AT ही करवा पाता है, तो AT2GC तो ये करवा नहीं पाएगा, ओके, और GC2AT को ये रिवर्ट करवा देगा. तो अगर जो रिवर्ट हो गया है इसका मतलब वो क्या था? AT2GC था. यानी म्यूटेंट होने के बाद में वो GC बना था तो रिवर्ट वापस हो जाएगा. यानी AT2GC म्यूटेशन हुआ है तो सेकंड म्यूटेशन जो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट से वो वापस रिवर्स करवाया जा सकता है, GC2AT करवाया जा सकता है. लेकिन सोचिए अगर ओरिजिनली GC था और उसमें ट्रांजिशन हुआ और GC2AT बना तो AT को हाइड्रोक्सिल एमीन तो रिवर्ट करवा नहीं सकता. तो रिवर्सिबिलिटी के बिहाफ पे हम ट्रांजिशंस म्यूटेशंस जो भी होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं वेदर इट वाज AT2GC और GC2AT. सो दैट इज वेरी यूजफुल थिंग रिगार्डिंग द हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स. नेक्स्ट इज द एल्कलाइटिंग एजेंट्स. व्हाट इज द मोस्ट चार्मिंग पार्ट ऑफ द एल्कलाइटिंग एजेंट्स? They are such kind of mutagens, they can create all kinds of mutations, whether it is transition or the transversion or the frame shift or even the chromosomal aberrations. Okay, how they do like that? They simply donate their alkyl group to the DNA.
At which part of DNA? Obviously the nitrogenous bases. Okay, already we have discussed that MMS and the EMS, these are the examples of alkylating agents. So they can also cause the GC to AT transition and AT to GC transition. जैसा कि हमने इस डायग्राम में भी यहाँ पे देखा है कि ये वाला जो पार्ट है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, जिसमें हम ग्वेनिन का केस कंसिडर करते हैं, एमएमएस की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइल ग्वेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके अलावा जो है जैसे एमएमएस या ईएमएस का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये 7 इथाइल ग्वेनिन प्रोड्यूस करता है और वो पेयर करता है थाइमीन के साथ, तो GC to AT ट्रांजिशन होता है। ओके, इन एमएमएस और ईएमएस के अलावा भी कुछ ऐसे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो एरर प्रोन डीएनए रिपेयर को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी वजह से ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट, ये सारी चीज़ें रिपेयर प्रोसीजर के इनएफिशिएंट होने की वजह से होता है। एरर प्रोन डीएनए रिपेयर का मतलब होता है कि डीएनए का रिपेयर तो होगा, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेजेस इस स्ट्रेटजी में काम आते हैं वो डीएनए पॉलीमरेजेस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं रखते हैं। इसकी वजह से रेप्लिकेशन एरर्स जो अगर आ सकते हैं तो वो आ जाएंगे, ये एंजाइम उनको रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स एरर प्रोन डीएनए रिपेयर को एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उनमें अल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा है, जिनको हम कह सकते हैं डाईफंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट्स, तो वो डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स को या स्ट्रैंड्स को आपस में क्रॉस लिंक कर सकते हैं और उसकी वजह से क्रोमोसोमल एबरेशंस आ सकता है, क्रोमोसोमल ब्रेकेज आ सकता है। So all in all, what is the most important line that has been mentioned in this slide? Very first, that alkylating agents induce all type of mutations, whether these are the transition, transversion, frame shift, or even the chromosomal aberrations. Now the another category comes, that is base analog. The base analogs are very similar in the structure to the normal nitrogenous bases. That's why they have been incorporated into DNA, but they can be incorporated only during replication. So they can have their impact, mutagenic impact, only on the replicating DNA. Examples have been mentioned here. The common examples are 5-bromouracil and 2-aminopurine. The 5-bromouracil is the analog of thymine. So what happens? Like the other normal bases, the 5-bromouracil also adopt the 2 forms, stable forms and unstable or the rare forms. That means 5-bromouracil in its normal state is found in the keto form, while it pairs with the thymine. It pairs with the adenine, because 5-bromouracil in keto form resembles to thymine. But after the tautomeric shift, it assumes the rare state as enol form, and this enol form do not pair with the DNA, rather than it pair with the guanine. In this diagram you can see, say the base pairing potential normal state में ये 5-bromouracil किसके साथ पेयर कर रहा है? एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है। नॉर्मल स्टेट माने कीटो फॉर्म, और जो एबनॉर्मल और द सो कॉल्ड रेयर स्टेट है उसमें 5-bromouracil किस फॉर्म में रहता है? इनॉल फॉर्म में, और पेयर किसके साथ कर रहा है? ग्वेनिन के साथ। सो ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन और पायरिमिडीन से पेयर करता है, इसलिए ये भी क्या करवा देता है? ट्रांजिशन करवा देता है। कैसे करवा देता है? इसके लिए आपको मल्टीपल रेप्लिकेशंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए TA बेस, ओके, इट इज ए बेस पेयर। फर्स्ट रेप्लिकेशन राउंड में सपोज कर लीजिए थाइमीन की जगह कीटो फॉर्म का 5-bromouriodine आ गया और एडेनिन के सामने थाइमीन की जगह ये यहाँ पे आ गया। ओके, अगले रेप्लिकेशन राउंड तक ये कोई म्यूटेशन क्रिएट नहीं करेगा। अगले रेप्लिकेशन राउंड में जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ में पेयर कर रहा है, लेकिन ये जो कीटो फॉर्म का 5-bromouriodine है, अगर तो ये अब पेयर करेगा तो ये किसके साथ पेयर करेगा? ग्वेनिन के साथ पेयर करेगा। क्यों पेयर करेगा ग्वेनिन के साथ?
क्योंकि अगर तो ये रेयर फॉर्म में शिफ्ट हो गया यानी इनोल फॉर्म में आ गया तो ग्वेनिन के साथ पेयर करेगा, अगर तो ये एडेनिन कीटो फॉर्म में रहता तो ये एडेनिन के साथ ही पेयर करता। सो ये कभी भी कीटो फॉर्म में और कभी भी इनोल फॉर्म में आ सकता है, और इस वजह से GC to AT और AT to GC दोनों ही ट्रांजिशन शो कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी बेस एनालॉग्स है वो सारे के सारे म्यूटाजेनिक नहीं होते। जैसे कि एक एड्स के ट्रीटमेंट में एजिडोथाइमिडीन को काम में लिया जाता है, ये थाइमिडीन का ही एनालॉग है, लेकिन क्योंकि इसका बेस पेयरिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए ये म्यूटेशन नहीं करवा पाता। और लास्ट कैटेगरी कम्स दैट इज इंटरकलेटिंग एजेंट्स। ये डीएनए में फंस जाते हैं और फंसने के बाद में या तो ये एडिशन करवा देते हैं या तो नाइट्रोजनस बेसिस का डिलीशन करवा देते हैं। और इस वजह से अगर ये म्यूटेशंस अगर ये म्यूटाजेनिक एजेंट्स, इंटरकलेटिंग एजेंट्स अगर प्रोटीन कोडिंग पार्ट में हो रहे हैं, यानी उस चेन में हो रहे हैं डीएनए की जो कि कोडोन्स को स्पेसिफाई कर रहा है, तो पूरे के पूरे कोडोन का जो टाइप है वो म्यूटेशन के डाउन स्ट्रीम में चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। इसलिए इस कैटेगरी के म्यूटेशंस को हम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी के म्यूटेशंस में रखते हैं। इसके एग्जांपल्स ट्रोफ्लैविन, एक्रिडीन डाइज, इथेरियम ब्रोमाइड, ये सब। सो फ्रेंड्स, हमने इन टोटल अभी सारी डिटेल में समझा कि केमिकल म्यूटेशंस कैसे म्यूटेशंस करवाते हैं। अच्छे से इसको वापस रिवाइज करिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे